شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر اور گردوں کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید چیز ہے۔ اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ میتھی ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے، یہ بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ قبض کشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے اور گلوکوز سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اس میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس سے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے، بلغم خارج ہوتی ہے۔ دمے کے مرض میں یہ بہترین ہے اور بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ خوبصورتی اور صحت تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر درد اور گردن کے درد وغیرہ سے بچ سکتے ہیں۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ گاجر کا جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اے پازیٹیو خون گروپ قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تیز روٹی کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھانا بناتے ہوئے یا لطیف یا ودود کا ود کریں، آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی نچاکیاں ختم ہو جائیں گی، پیار محبت اور سکون آ جائے گا۔ رات کو مسواک کر لیا کرو، کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور منہ کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ رات کو بکری کا دودھ پیئے، بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ خالی پیٹ ادرک کھا لینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، گھی والی غذائیں بھاری اور ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہیں، جو بدہضمی کا سبب بنتی ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر اور کان تیز ہوتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ کھجور کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ چاٹنے سے پیشاب کی جلن کم ہوتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں، کچھ دنوں میں آپ کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہے تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو رگڑنے سے گنجا پن دور ہوتا ہے، ٹینشن بھی دور ہوتی ہے۔ اگر نہاتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر نہایا جائے تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پہ لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے 100 سال تک لکوہ جیسی مہلک بیماری نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی صاف رہتی ہے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھپھڑے کبھی خراب نہیں ہو پاتے۔ چلتے ہوئے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
अदरक को पानी में उबालकर पीने से कमर के निचले हिस्से का दर्द ख़त्म हो जाता है। शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ बल्कि कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत हमेशा ठीक रहती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करें, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेजाबियत और जलन दूर होती है। तहज्जुद के वक़्त हाथ मुंह धोने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए बाएं पांव पर खड़े रहने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। खट्टी डकारें आती हैं तो कच्चे अंगूर खाने से डकारें आना बंद हो जाएंगी। नाश्ते में अचार का इस्तेमाल कद को लंबा करता है। अगर औलाद ना होती हो तो हर जुमे वाले दिन यतीम बच्चों को घर बुलाकर खाना खिलाया करें। अगर जिस्म में सूजन का मसला है तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा दोस्त तो माँ की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आँख रोती है और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। नहार में रंग बिरंगी चीज़ों को देखने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। इमली और गुड़ अर्के गुलाब में मिलाकर पीने से वज़न में कमी आती है। जिस घर में सुबह सुबह सफाई हो जाती है, ऐसे घर आबाद होते हैं। अगर 70 साल की उम्र में भी जवान रहना चाहते हो तो नाश्ते में अरवी का सालन खाया करो। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है और खून की कमी भी दूर हो जाती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल से चेहरे का मसाज करें, आपकी जल्द अच्छी रहती है। जो औरतें ज़्यादा देर बैठी रहती हैं, इनको बवासीर का मसला हो जाता है। शाम के वक़्त खट्टी चीज़ें खाने से बाल कमज़ोर होते हैं। बालों को तेल लगाकर कंघी करने से बाल जल्दी लंबे होते हैं। बोतल के साथ मुंह लगाकर पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। दिन के वक़्त पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ख़वातीन के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ख़वातीन रोज़ाना गुड़ और चने का इस्तेमाल करें। खाली पेट अखरोट खाने से बाल सेहतमंद हो जाते हैं। दही और चाय दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं, जिसके बायस ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो हाजमे के निज़ाम को सुस्त बना देती हैं। जो औरतें पाँव में पायल पहनती हैं, ऐसी औरत शौक और चंचल मिजाज की होती हैं। रोज़ाना 15 मिनट पैदल चल लेने से कोई बीमारी जल्दी आपको घेर नहीं सकेगी। अगर आपको तेज़ पेशाब आ जाए तो पेशाब करने से कबल 1 गिलास पानी का पी लो, इसके बाद पेशाब करो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। अगर कान में कोई कीड़ा चला जाए तो सरसों के तेल से कान को भर दो, कुछ ही देर में कीड़ा ऊपर की जानिब बाहर निकल आएगा। खाली पेट अंजीर खाओ, खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है, कमज़ोरी दूर होती है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खा लें। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द ख़त्म हो जाएगा। बकरी का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। पाँव के तलवों पर थोड़ी देर के लिए हाथ मसलते रहने से यादाश्त अच्छी होती है। चावल खाने से पहले नींबू के चंद कतरे पी लो, दमा की बीमारी नहीं होगी। पाँव के बल बैठकर नहाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। रात की रानी के पौधों को होंठों पर मसलने से होंठ नहीं फटते। गंडेरियाँ चूसने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकदार होते हैं। खाने के अंदर बादियान का फूल इस्तेमाल करो, बदन की जिल्द टाइट रहती है। जिस औरत के हाथ की उंगलियां नरम व मुलायम हो, ऐसी औरत आबादतगुजार होती है। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है, पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं। रात को सोते वक्त चंद बादाम पानी में भिगोकर सुबह नहार मुँह खा लो, उम्र भर बदन तवाना रहेगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर बाल रूखे हैं तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का रूखापन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको शुगर है तो आपकी इस तकलीफ़ का बायस आपकी ग़िज़ा है, इसलिए ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद इस्तेमाल करते हैं, इनका पेट कभी बाहर नहीं आता। जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं, वो ज़्यादातर डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार रहते हैं।
इसी तरह किशमिश में फाइबर की अच्छी मकदार होती है जो हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करती है। शहद में मौजूद ग़िज़ाई खसूसियात जो दिल के मसाइल को कम करने में मददगार साबित होती हैं। खजूर में पोटाशियम होता है जो दिल की धड़कन को मामूल पर रखने में मदद करता है। इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। तो किसी विटामिन सी से भरपूर होने के बायस किशमिश क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाती है। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस खसूसियात होती हैं जो जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती हैं। शहद के इस्तेमाल से हाजमे के मसाइल जैसा कि गैस और कब्ज़ में आराम मिलता है। खजूर भी फाइबर से भरपूर होती है और आंतों की हरकत को बेहतर करती है। शहद और विटामिन ई का तेल मिलाकर होंठों पर लगाएं, ये होंठों को नरम और हमवार बनाता है। घर में आए मेहमान को सबसे पहले खजूर खिलाने से रिज़्क में इजाफा होता है। इसी तरह मेहमान को अंधेरे में बिठाने से रिज़्क में तंगी आती है। रोगन गुल मेहंदी बालों की कुदरती चमक और गहरी रंगत के लिए बेहद मुफीद है। सर में दर्द हो तो उल्टे पांव चलना शुरू कर दो, सर का दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। घर में बकरियां ले आओ, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करो, रोज़ी आने से कोई नहीं रोक सकता। यतीमों और गरीबों की हर हाल में मदद किया करो। 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और इसे उबालें। जब इसका अरक निकल जाए तो इसे ठंडा कर लें और सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले नींबू का रस निचोड़ कर पी लें। इससे तेज़ी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वज़न कम होने लगेगा। जिस्म से तमाम फासिद मादों का खात्मा हो जाएगा, साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा और इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आएगी। पानी ज़्यादा पिया करो, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। पानी सारी बीमारियों का इलाज है। अगर जवानी बरकरार रखनी है तो रोज़ाना नहार मुँह लाल सेब का रस पी लिया करो। गंदम के आटे में सौंफ शामिल करके खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो औरतें खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, इनको चाहिए कि चुगली की आदत को छोड़ दें और हसद करने से बची रहें। अपनी खुराक को हलाल रखो, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह से वज़ू करे, इसकी खताएं इसके जिस्म से निकल जाती हैं, हत्ता के नाखनों के नीचे से भी। सुबह सूरज निकलने से कबल हाथ मुंह धोकर एक चुटकी कच्चे चावल फाँक लेने से जिगर मजबूत हो जाता है, पेशाब की जलन दूर हो जाती है। खरबूजा खाने के बाद शरबत नहीं पीना चाहिए। आम खाने के बाद दूध की लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए। इससे खून नहीं जलता बल्कि जिस्म में खून पैदा होता है। हाथ जल जाने की सूरत में फ़ौरन सरसों का तेल लगाएं, इससे छाले नहीं पड़ेंगे और ना ही जलन होगी। चेहरे को पानी से गीला करके फटकरी से हल्का हल्का मसाज करो, दाने ख़त्म हो जाएंगे। गंदम के आटे में चने और जौ का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। सालन में नमक कम से कम खाना चाहिए ताकि गुर्दे ख़राब ना हो। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खा लेने से सांस की नाली हमेशा साफ रहती है। बादाम को जलाकर इसका सुरमा बना लें और इसको रात को सोने से पहले आँखों में लगाया जाए तो आँखों की रोशनी कभी कमज़ोर नहीं होती। खुश्क इमली का शरबत बदन में आयरन की कमी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हड्डियों का भुरभुरापन और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। मैदे में जलन और तेजाबियत को दूर करता है। दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है और पट्ठों के खिंचाव को भी ठीक करती है। कच्चे चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे गुर्दों में पथरी हो सकती है। रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें और सुबह इसे पी लें। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रोटी या पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सूती कपड़े के साथ साफ करके ही रखना चाहिए। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लहसुन पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और वज़न भी कम रहता है। इसबगोल का छिलका लगातार नहीं खाना चाहिए, ये जिस्म के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, बल्कि एक दिन छोड़कर या कभी कभार ही खाना चाहिए।
खानों में काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करना बदन के जरासीम को ख़त्म कर देता है। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल है। लोखंड खाने से बेचैनी और घबराहट दूर होती है। यह खुराक को जल्दी हजम करने में मदद देता है। निज़ाम के लिए भी बेहतरीन साबित होता है और बवासीर के मरीज भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़न कम करने के लिए खाना हमेशा चबा कर खाएं, चीनी कम खाएं, खाने के बाद पानी ना पिएं। जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो आलू काट कर लगाने से जलन ख़त्म हो जाती है। चेरी का फल इस्तेमाल करना आपको बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाता है। जैसा कि चेरी का फल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में भी बहुत मुफीद है। चेरी का इस्तेमाल वज़न को घटाने में खातिर ख्वाह मदद फराहम करता है। नींद की कमी का शिकार अफराद चेरी के फल से फ़ायदा उठा सकते हैं। चेरी का फल इस्तेमाल ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। कच्चे नारियल का पानी पीने से जिस्म की थकावट दूर होती है, जिस्म को ताकत मिलती है और जिस्म की सुस्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिस्म को तेज़ करने के लिए खीरे खाएं। गाजर का जूस यरकान में बेहद मुफीद साबित होता है। इंसानी जिस्म में आयरन की पैदा करता है। अगर किसी बंदे ने अपना वज़न बहुत जल्दी बढ़ाना है तो फिर वो आलू उबाल कर खाए। मेथी का साग हड्डियों की कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करता है। जोड़ों के दर्द के लिए जो मुफीद साबित होता है। नमाज अंधेरे में पढ़ना गमों से खुशी पाएगा। वज़न कम करने के लिए खाना हमेशा चबा कर खाएं, चीनी कम खाएं, खाने के बाद पानी ना पिएं। नाजरीन, चेहरे को पानी से गीला करके फटकरी से हल्का हल्का मसाज करने से दाने ख़त्म होंगे। गंदम के आटे में चने और जौ का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। सालन में नमक कम से कम खाना चाहिए ताकि गुर्दे ख़राब ना हो। रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दें और सुबह इसे पी लें। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोटी या पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सूती कपड़े के साथ साफ करके ही रखना चाहिए। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लहसुन पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और वज़न भी कम होता है। नाजरीन, खानों में काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करना बदन के जरासीम को ख़त्म कर देता है। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।